Salam sir. हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। You welcome. Okay, so good morning, everybody. So, can you hear me, please? Yes, sir. Okay. Yes sir. Yes, sir. Okay, thank you. So, can you see the shared screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Okay. Now, please mute your mics so that we should start with the discussion. And one thing I would like to ask, so what about the timing in future? Is this time suitable to all of you? Yes, sir. ठीक है ये टाइम. ये ठीक Yes, sir. It is suitable. या चेंज करना चाहते हैं अगर कोई आप में से कोई? सर यही टाइम ठीक है क्लासेस का ही. क्लास टाइम ही ठीक है. Okay, that's fine. That's fine. Okay then. So, so we were discussing the chromatographic parameters which need to be determined when we are performing any chromatographic analysis, particularly when we are developing a new chromatography method. So we discussed something about resolution, column efficiency, now capacity factor. Capacity factor, the concept is that how much sample can be loaded on a column or on a plate.
because if the sample size is too great, too big, the resolution will be poor because the bands will try to merge with each other if the sample size is too big. So capacity factor relates to that. What is the capacity of a stationary phase? The maximum load which can it bear. दूसरे लफ्ज़ों में जिस तरह हम कहते हैं कि हर शख्स जो है वो एक ख़ास वज़न उठा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं. अगर ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली वो बैठ जाएगा. So similarly, the capacity factor of a stationary phase is like that, how much sample we can load on that stationary phase. So this is very important to achieve good resolution. So next is the bandwidth. What is bandwidth? Bandwidth is related to the width of the peak. That is, if you look at my hand, if the bandwidth is wider, the resolution will become poor because the components will try to mix with each other. If the bandwidth is narrower, resolution will be better. दूसरे लफ्ज़ों में अगर peaks जो हैं वो wider होंगी, so they will try to merge with each other. On the other hand, narrow peaks like this, ये जो आपको नजर आ रही हैं स्क्रीन पे, narrow peaks, so they will produce good resolution. तो bandwidth का concept यही है कि सैंपल आप कम लोड करें so that आपकी जो bandwidth है वो कम हो. तो जितनी bandwidth कम होगी यानी peaks narrow होंगी, resolution जो है वो बेहतर होगी. Linearity of response क्या है, ये हमने गालबन पिछली स्लाइडों में we go back तो we can trace के कहाँ पे हमने डिस्कस किया था. ये एनालिटिकल वर्किंग रेंज, दिस वी डिस्कस्ड, और ये वो रेंज है जिसके अंदर जो रिस्पांस है वो लीनियर रहता है. तो अगर ऊपर चलते जाएं कर्व के ऊपर तो वो फ्लैट होना शुरू हो जाती है. एज वी सा इन केस ऑफ बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ कि जब एक कंसंट्रेशन से ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाए तो कर्व जो है वो ऐसे बेंड करना शुरू कर देती है. तो linearity of response का मतलब है कि in which it is the range in which the response of the curve remains linear. Okay. Now we move to our current slide. Yes. Yes. Then signal to noise ratio we also discussed in previous discussions. Limit of detection, limit of quantification. So all these factors we have already discussed. So we will move to the next parameter, which is retention time. तो रिटेंशन टाइम का भी कॉन्सेप्ट जो है आई थिंक सबको समझ आ गया है कि इट इज़ द टाइम of a component which it spends
ऑन द कॉलम। तो जब हम मिक्सचर को लोड करते हैं तो जो सबसे पहले एल्यूट होता है व्हेन वी आर रनिंग द मोबाइल फेज, तो उसका रिटेंशन टाइम शॉर्टर होगा, जो बाद में आने वाले उनका रिटेंशन टाइम ज़्यादा होगा। So related to this is the retention volume. रिटेंशन वॉल्यूम का कंसेप्ट ये है कि जब हम मोबाइल फेस चलाते हैं तो जब वो कंपोनेंट बाहर आता है, एल्यूट होता है, तो कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है मोबाइल फेस का, दिस इज द रिटेंशन वॉल्यूम। तो ये कैसे हम डिटरमिन कर सकते हैं, ये रिटेंशन टाइम से निकल आता है। तो हमें ये पता होता है कि व्हाट इज द फ्लो रेट ऑफ द मोबाइल फेस। तो अगर फर्ज किया मोबाइल फेस का फ्लो रेट है 2 मिलीलीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 2 मिलीलीटर जो है वो कंज्यूम हो रहा है, वो ड्रेन हो रहा है मोबाइल फेस। तो अगर हम कहें कि 5 मिनट्स में कितना वो ड्रेन हो जाएगा, तो दैट विल कम आउट टू बी 10 मिलीलीटर। तो इस तरह से हमने क्या किया कि जो फ्लो रेट है उसको मल्टीप्लाई कर दिया टाइम से। तो दिस इज हाउ वी गेट द फ्लो रेट। तो आप लोग किसी भी टाइम पे अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें ना, तो आप अनम्यूट करके अपने आप को तो यू कैन क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट पैरामीटर इज मास डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो। ये क्या है? दिस इज वेरी सिंपल थिंग कि द एनालाइट व्हेन इट सिट्स ऑन द कॉलम, तो फिर मोबाइल फेस चलाते हैं तो मोबाइल फेस के साथ ये कैरी होता है और ट्रेवल करता है डाउन द कॉलम। तो amount of solute in the stationary phase divided by the amount of solute in the mobile phase, this is known as mass distribution ratio. In other words, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो एनालाइट है कितना वो स्टेशनरी फेज पे एट एनी टाइम, मतलब 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, if you want to measure mass distribution ratio of the analyte on the column, तो उसका आसान फार्मूला है कि आप स्टेशनरी फेज के अंदर जो अमाउंट है वो डिटरमिन कर लें बाय एनी सूटेबल एनालिटिकल मेथड, और अमाउंट ऑफ सल्यूट इन द मोबाइल फेज, तो दोनों अमाउंट्स की रेशो ले लें, तो दैट विल गिव यू द मास डिस्ट्रीब्यूशन रेशो। तो इसका दूसरा वर्जन है VS over VM. So what is VS? Volume of the stationary phase, और VM is the volume of the mobile phase. तो इस तरह से भी ये मास डिस्ट्रीब्यूशन रेशो निकल आती है, but the simplest statement is amount of the solute in stationary phase divided by amount of solute in the mobile phase. तो ये मास डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो, इसकी क्या एप्लीकेशन है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? तो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट व्हेन वी आर डेवलपिंग न्यू मेथड। तो हमें पता होना चाहिए कि जो एनालाइट है वो ट्रेवल कैसे करेगा ऑन दी कॉलम। तो अगर वो सॉल्वेंट के अंदर उसकी अमाउंट कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका रिटेंशन टाइम ज्यादा होगा, वो ज्यादा देर कॉलम के ऊपर ठहरा रहेगा। तो ये इंफॉर्मेशन जो है, दिस इज इम्पोर्टेंट टू नो व्हेन वी आर डेवलपिंग द न्यू मेथड। इसी का नाम है कैपेसिटी फैक्टर। तो दूसरे लफ्जों में कैपेसिटी फैक्टर आप इससे डिटरमिन कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम फिर सैंपल उतना लोड करेंगे जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन रेशो जो है वो सूटेबल और इट इज गिविंग गुड रेजोल्यूशन। ओके, तो दूसरा मास डिस्ट्रीब्यूशन रेशो का जो है फार्मूला, वो इज
TR minus TD over TD. तो ये क्या है, व्हाट इज TR, व्हाट इज TD? एंड तो वेरी सिंपल थिंग कि TR इज द रिटेंशन टाइम, और जो भी कंपोनेंट है, मसलन देयर मे बी ए नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन ए मिक्सचर 1 2 3 जितने मर्जी हों, तो हर एक का आप जो मास डिस्ट्रीब्यूशन रेशो है या कैपेसिटी फैक्टर है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द क्रोमेटोग्राम। वो जो पहला हमने पिछली स्लाइड पे डिस्कस किया वो डेफिनेशन है। तो अब प्रैक्टिकली डिटरमिन कैसे करना है, क्योंकि पिछली स्लाइड में लिखा हुआ था amount of solute in stationary phase divided by amount of solute in the mobile phase। अब कॉलम में से आप स्टेशनरी फेज निकालें, उसमें से फिर डिटरमिन करें, और इसी तरह जो मोबाइल फेज है उसको भी निकालें तो उससे उसमें डिटरमिन करें, तो ये तो सारा वो कॉलम ही आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये प्रैक्टिकेबल नहीं है, दिस इज जस्ट ए डेफिनेशन। तो प्रैक्टिकली हाउ डू वी डिटरमिन द मास डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो, वो क्रोमेटोग्राम से, कि जब आपने क्रोमेटोग्राम रन किया है तो अगर एक ही कंपोनेंट है तो उसका तो सिंपल है कि उसका रिटेंशन टाइम माइनस द डेड टाइम। ये डेड टाइम अभी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज डेड टाइम। तो TR माइनस TD डिवाइडेड बाय अगेन TD, so this will give you the mass distribution ratio, or in other words the capacity factor। अब आते हैं कि what is TD, dead time। dead time क्या है? तो कॉलम के अंदर जो स्टेशनरी फेज होता है वो ड्राई नहीं होता, उसके अंदर हमेशा कुछ न कुछ सॉल्वेंट मौजूद होता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर स्टेशनरी फेज कॉलम के अंदर हमने पैक किया हुआ है, अगर वो ड्राई हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन, ये ऐसे ही है जिस तरह आप दीवार के ऊपर सीमेंट लगा दें और वो उसको क्विकली ड्राई होने दे तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप वो सीमेंट को आप वेट करते हैं आफ्टर सम टाइम, लगाने के बाद आप थोड़ी देर बाद उसको वेट रखें तो फिर वो क्रैक्स डेवलप नहीं होते। तो कॉलम के अंदर अगर क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे तो फिर जो आपका एनालाइट है और मोबाइल फेज है वो क्रैक्स के थ्रू ट्रेवल करेगा, तो वो रिटेंशन टाइम का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि एड्जॉर्प्शन होनी चाहिए कॉलम के ऊपर या आयन एक्सचेंज होने या और फिनोमिना होने, तो वो इंस्टेड ऑफ दैट फंक्शन वो क्रैक्स में से होता हुआ जो आपका एनालाइट और मोबाइल फेज है वो आ जाएगा, तो उसमें कोई रिटेंशन नहीं होगी। तो अब वो जो स्टेशनरी फेज कॉलम के अंदर पैक्ड है, एज वी सेड कि उसमें कोई ना कोई लिक्विड मौजूद होता है जिसके अंदर कॉलम जो है वो स्टोर किया जाता है। तो अब जब हमने ऊपर सैंपल लोड किया, फिर हमने मोबाइल फेज चलाना शुरू कर दिया, तो मोबाइल फेज जब हम ऑन करेंगे तो मोबाइल फेज का पहला कतरा बाहर कॉलम से बाहर कब आएगा? वो तब आएगा कि जो पहले से उसके अंदर लिक्विड मौजूद है वो सारा ड्रेन हो जाएगा। तो वो जो पहले से अंदर जो लिक्विड मौजूद है तो उसका जो वॉल्यूम है दैट इज नोन एज डेड वॉल्यूम, और वो जितने टाइम में वो सारा ड्रेन होगा जो पहले से मौजूद लिक्विड है और आपके मोबाइल फेज का पहला कतरा आएगा, तो वो जो टाइम जितना लगा उस वॉल्यूम को बाहर आने में दैट टाइम इज नोन एज डेड टाइम। तो अब आपके जो जितने रिटेंशन टाइम है जो एनालाइट के कंपोनेंट्स के हैं वो मेजर होते हैं फ्रॉम द डेड टाइम। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेड टाइम। तो अगली स्लाइड में ये थोड़ा सा और वाज़ेह हो जाएगा कि ये आप
क्रोमेटोग्राम एक देख रहे हैं, तो इसमें T0 लिखा हुआ और T1। तो T0 इज द डेड टाइम, और ये डेड टाइम आप देख रहे हैं छोटी सी ये इसमें किंक सी बन रही है। तो ये कैसे हम डिटरमिन करते हैं क्रोमेटोग्राम से, ये हमें कैसे पता चलता है कि डेड टाइम कहाँ पे है? तो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि जो कॉलम के अंदर पहले से मौजूद लिक्विड है, फॉर एग्जांपल इट इज मेथनॉल, तो आपका स्टेशनरी फेज जो है वो मेथनॉल के अंदर था, उसको आपने पैक किया कॉलम के अंदर, एंड मेथनॉल इज स्टिल देयर। तो जब आपने अपना मोबाइल फेज रन करना शुरू किया तो व्हाट विल हैपन, तो डिटेक्टर में पहले क्या पास हो रहा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये मैं इसको थोड़ा एलैबोरेट करता हूँ कि ये आप देख रहे हैं ये जो टाइम, ये देखें, मैं ये बना रहा हूँ, ये जो यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचता है आपका ये लाइन, तो ये लाइन इंडिकेट कर रही है कि जो पहले से मौजूद लिक्विड है कॉलम के अंदर वो बाहर आ रहा है। तो आपका डिटेक्टर जो है वो इसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो यूं ही पहला कतरा आपके मोबाइल फेस का डिटेक्टर में पहुंचेगा तो देयर विल बी ए शिफ्ट। ओके, तो वो शिफ्ट होगी तो इस तरह की एक किंक्सी बनेगी और नई जो बेस लाइन है वो शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो पॉइंट है यहाँ से आप यू कैन डिटरमिन कि जहाँ पे ये शिफ्ट हो रही है, दिस टाइम इज नोन एज द डेड टाइम। तो ये क्रोमेटोग्राम से हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये आपका T1 हो गया, या TR इसको कह लें। तो T1 minus T0 divided by T0, this is your mass distribution ratio, और इसी का नाम है capacity factor. So this is how we can determine this mass distribution ratio experimentally from the chromatogram. तो हमें वो stationary phase जो है वो निकालना नहीं पड़ेगा कॉलम में से और एनालाइज नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो ये नेक्स्ट स्लाइड जो है इसको आप केयरफुली देखें। तो इसको हम देखते हैं कि हाउ वी कैन व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस। तो ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है ये एक पीक है, और पीक आप देख रहे हैं एक सिमेट्रिक पीक है। सिमेट्रिक पीक का मतलब है कि ये दोनों तरफ से जितना इधर है उतना ही सेंटर से इधर है। तो ये डिस्टेंस जो है ये एग्जैक्टली बराबर है इस डिस्टेंस के। तो इसको हम कहते हैं ये पीक जो है वो सिमेट्रिक है। तो नॉन सिमेट्रिक पीक क्या होगी कि मसलन यहाँ से तो ये आ रही है ऐसे, तो इधर एकदम से नीचे आ गई, ये नॉन सिमेट्रिक हो गई। ओके, तो ये जिधर से बड़ी हुई होती है मसलन इस तरह भी आ सकती है लाइक दिस, ऐसे। तो ये जो बड़ी हुई विड्थ है इसको हम कहते हैं टेलिंग। ओके, तो ये सिमेट्रिक पीक है। तो इसको अगर आप गौर से देखें तो ये कुछ पैरामीटर्स जो है इसके ऊपर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले ये जो पीक से जो नीचे टाइम आ रहा है दिस इज रिटेंशन टाइम। ओके, रिटेंशन टाइम कैसे हम रीड आउट करेंगे कि पीक पॉइंट आप आइडेंटिफाई करें और फिर आप नीचे वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो ये रिटेंशन टाइम आ जाता है। तो ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये वाली, ये हम कैसे ड्रा करते हैं, दिस इज नोन एज द बेस लाइन। तो ये पीक के जो नीचे कर्व बन रही है उसको आप दोनों को टच करती हुई लाइन ड्रा करें तो ये बेस लाइन होगी। ओके,
तो टी आर का मतलब है रिटेंशन टाइम। ओके, तो ये अब हम आते हैं कि ये जो दो लाइनें हैं, ये क्या चीज है। तो इसमें ये लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है W0.5। तो W का मतलब है वेड्थ, ये वेड्थ है, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज द विड्थ। ओके, तो ये विड्थ कहाँ पे मेजर की है, ये पीक की टोटल हाइट का हाफ कर दें। मसलन ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल हाइट है लाइक दिस, इसका हाफ कर दें तो ये आ गया। तो हाफ पॉइंट पे आके जो है width, this is known as W0.5। ओके, तो अब ये जो दूसरी लाइन ये है, ये क्या है, ये WINFL लिखा हुआ है, ये है width at the point of inflection। अब व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? इन्फ्लेक्शन इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब है कि ये कर्व बन रही है, ऐसे करके कर्व बन रही है। तो जहां पे ये सीधी लाइन चलती जा रही है, ये सीधी लाइन, तो सीधी लाइन आप ड्रा करें तो वो देखें कर्व कहाँ से बननी शुरू हुई। तो यहाँ से कर्व जो है वो बेंड होना शुरू हो गई। तो दिस इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो कर्व के दोनों तरफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, यानी यहाँ भी आप देखें ये स्ट्रेट लाइन ड्रा करते जाएं, तो जहां से ये बेंड होना शुरू हो जाएगी वो पॉइंट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लाइन है, इसको हम कहेंगे विड्थ, यानी इसकी अगर आप विड्थ मेजर कर लें इन सेंटीमीटर और मिलीमीटर, तो इसको हम कहेंगे कि ये दिस इज द विड्थ एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये जो दो विड्थ हमने डिटरमिन की फॉर ए सिमेट्रिकल कर्व, कोई भी सिमेट्रिकल पीक होगी तो उसकी एक रिलेशनशिप है विच इज दिस, ये रिलेशनशिप है कि जो विड्थ एट द पीक हाफ हाइट पीक होगी वो इक्वल होगी 1.18 मल्टीप्लाइड बाय विड्थ एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये आप ट्राई करें, आज घर पे कोई भी आप पीक बना लें। अब पीक छोटी हो बड़ी हो, मतलब ये छोटी है ये बड़ी है, कितनी भी साइज की पीक हो लेकिन वो सिमेट्रिक हो, तो उनमें ये पैरामीटर जब आप कैलकुलेट करेंगे उनकी रेशो हमेशा जो है वो 1 पॉइंट यही आएगी। ओके, तो इस तरह से ये तो ये जो पैरामीटर है इसको आपने ज़हन में रखना है, ये आगे फार्मूले में यूज होगा। ओके, तो नाउ वी मूव टू नेक्स्ट parameter which is known as a symmetry factor। तो अभी हमने we talked about symmetry, तो हमने देखा कि वो सिमेट्रिक पीक है। तो ये जो आपको पीक नजर आ रही है यहाँ पे, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। इसकी राइट साइड पे आप देख रहे हैं टेलिंग है, यानी ज्यादा टेल बन रही है, तो इसको हम टेलिंग भी कहते हैं। तो सिमेट्री फैक्टर का दूसरा नाम टेलिंग फैक्टर भी है। तो अब ये अगर हमने किसी को बताना है कि फलां पीक में कितनी सिमेट्री है या कितनी एसिमेट्री है, तो उसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू का फार्मूला है ये दिया हुआ W0.05 डिवाइडेड बाई 2D। अब आप आ जाएं इस फिगर पे, तो इसमें देखें कि D क्या है और W0.05 क्या है। पिछली स्लाइड में हमने देखा था W0.5 वो थी width of the peak at half height। अब ये जो width है ये है W0.05। तो ये बनती है कि अगर टोटल पीक को आप 20 से डिवाइड कर दें, यानी 1/20 का आंसर क्या होगा 0.05। तो
इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल हाइट आप मेजर करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टोटल हाइट, इसको फर्ज किया ये आ जाती है 30 सेंटीमीटर, तो इसको 20 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगी 1.5। इसका मतलब नीचे से बेस लाइन से आप 1.5 सेंटीमीटर मेजर करके ये जो लाइन है ये लाइन ड्रा कर दें। तो दिस इज नोन एज, ये जो विड्थ होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज नोन एज W0.05। ओके, तो इसकी विड्थ आप मेजर कर लें और ये अब आप नाउ यू कैन डिफाइन ये डी क्या है। तो डी जो है वो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डी है। अब आप देखें जरा, इसको गौर से देखें कि अगर जितना डिस्टेंस इस तरफ है इतना ही अगर इधर होता तो पीक सिमेट्रिक हो जाती, फिर पीक ऐसे बनती है ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ये इधर से राइट साइड से टेलिंग होती जाएगी उतनी पीक एसिमेट्रिक होती जाएगी। तो अब ये फार्मूला आपको समझ आ जाएगा कि अगर आप ये रेशो लें कि W0.05 डिवाइडेड बाई 2D, 2D का मतलब है कि ये जितना डिस्टेंस है ये वाला, इसको डबल कर दें तो वो अगर सिमेट्रिक होगी पीक तो वो W0.05 के बराबर आ जाएगा। यानी अगर ये सिमेट्रिक पीक होती तो फिर ये 2D बन जाता यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसको हम W0.05 पीक कहते हैं। तो ये वेरी सिंपल फार्मूला, तो इससे हम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन करते हैं टू टेल समबडी कि फलां पीक जो है उस वो कितनी सिमेट्रिक है या कितनी नॉन सिमेट्रिक है। ओके, तो ये सिमेट्री फैक्टर, तो इसकी अगर वैल्यू 1 होगी इस रेशो की तो ऑब्वियसली पीक इज सिमेट्रिक, क्योंकि वो फिर W0.5 विल बिकम इक्वल टू 2D के ये जो हाफ विड्थ है ये D, तो दूसरी तरफ भी इतनी होगी तो वो 2D बन जाएगी, तो वो बराबर हो जाएगी इन केस ऑफ सिमेट्रिक पीक, वो बराबर हो जाएगी W0.05 के। तो अगर इसकी वैल्यू 1 एक्सक्यूज मी, तो अगर इसकी वैल्यू 1 आती है तो हम कहेंगे पीक इज सिमेट्रिक, और अगर 1 से ज्यादा आती है या कम आती है तो द पीक इज एसिमेट्रिक। ओके, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, सिमेट्री फैक्टर हम कैसे डिटरमिन करते हैं। तो फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस जब भी हम कोई नया मेथड डेवलप करें तो उसमें हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि पीक्स जो हैं वो सिमेट्रिक होनी चाहिए, सो दैट आपकी ये जो टेलिंग है इससे जो इनएक्यूरेसी आएगी वो उसमें से माइनस हो जाए। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में ये जो हमने पीछे 2 पैरामीटर्स जो है वो डिस्कस किए थे, रेजोल्यूशन और नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स, तो उनका फार्मूला लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट का फार्मूला है 5.54 मल्टीप्लाइड बाई रिटेंशन टाइम डिवाइडेड बाई वेट्स एट दी हाफ पीक हाइट, यानी कोई भी कंपोनेंट है, अगर फर्ज किया एक मिक्सचर में 3 कंपोनेंट है तो तीनों पीक से आप नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो हर कंपोनेंट का को करस्पॉन्ड करता है जो नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स, वो उसी कंपोनेंट के लिए मखसूस है, स्पेसिफिक फॉर दैट कंपोनेंट। तो अगर सिंगल कंपोनेंट है तो प्रैक्टिस क्या है कि एज वी डिस्कस लास्ट टाइम के नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट सिग्निफाई क्या करता है, इट टेल्स अस अबाउट द कॉलम एफिशिएंसी, कि कॉलम जो है वो कितना एफिशिएंट है। तो प्रैक्टिकली जब आपने कॉलम की एफिशिएंसी मालूम करनी होगी
तो आप सिंगल कंपोनेंट यूज करेंगे, कोई एक एनालाइट ले लेंगे, तो उसका जो रिटेंशन टाइम आएगा उस पीक का आप W0.5 डिटरमिन करें, उससे डिवाइड करके उसका स्केयर लें और अप्लाई दिस फार्मूला, तो ये आपको नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स। तो जो अच्छे कॉलम होते हैं उनकी नंबर जो है, तादाद जो है वो हजारों में आती है। ओके, तो ये फैक्टर जब आप नया कॉलम लें उसका आप उसी कंपोनेंट से मेजर करें नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स, फिर उसको फ्रीक्वेंटली जब आप यूज कर रहे हैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद, उसकी नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट बाय यूजिंग द सेम एनालाइट वो आप डिटरमिन करें, तो आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ प्लेट जो है वो रिड्यूस हो रही हैं, फॉल कर रही हैं, तो इसका मतलब कॉलम की एफिशिएंसी जो है वो डाउन हो रही है। तो एक स्टेज आएगी कि वो नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स बहुत कम हो जाएंगी, तो इन दैट केस वो जो कंपोनेंट शुरू में जितने कंपोनेंट सेपरेट करता था उतने नहीं करता, मतलब पहले 10 में से 9 करता था, तो अब उसकी एफिशिएंसी फॉल हो गई है, 10 में से 5 करता है, तो अब वो आपके लिए सूटेबल नहीं रहा। तो इस तरह से यू कैन डिटरमिन द हेल्थ ऑफ द कॉलम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो अब ये दूसरा फार्मूला है रेजोल्यूशन का। तो रेजोल्यूशन में आप देख रहे हैं 1.18 की फिगर ये आ रही है, तो ये फिगर अब आप को समझ आ गई कि वो पिछली जो स्लाइड थी जिसमें हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और हाफ पीक हाइट उसकी रेशो जो है दोनों बिट्स की वो डिटरमिन की थी, तो उस रेशो का आंसर था 1.18। तो ये वहां से ये फिगर आती है। तो इस फार्मूले में क्या है कि 1.18 मल्टीप्लाइड बाय रिटेंशन टाइम ऑफ द पीक नंबर बी माइनस रिटेंशन टाइम ऑफ द पीक नंबर ए divided by half width at half peak height of peak A plus width of the other peak at half height। तो ये बड़ा सिंपल फार्मूला है, क्योंकि रेजोल्यूशन हमेशा जो है इट इज ऑलवेज बिटवीन टू कंपोनेंट्स। तो किसी भी दो कंपोनेंट के दरमियान, मसलन अगर ये आपका क्रोमेटोग्राम है, 3 है उसमें पीक्स, तो जब भी आपने रेजोल्यूशन डिटरमिन करनी है तो आप 2 पिक करेंगे, किस किस और किस के दरमियान आपने रेजोल्यूशन डिटरमिन करनी है, इस पीक के दरमियान और इस पीक के दरमियान करनी है। तो फिर इनका रिटेंशन टाइम आप यहाँ फार्मूले में लिखेंगे और इन्हीं की ये जो पीक विड्थ एट हाफ हाइट वो डिटरमिन करेंगे। तो अगर आप ये पहली 2 का आप करना चाहते हैं तो इनका कर लें। तो एनी 2 कंपोनेंट्स के दरमियान जो है वो रेजोल्यूशन आप डिटरमिन करेंगे बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला। तो ये नीचे जो लिखा हुआ है TRB ग्रेटर देन TRA, ये सिर्फ ये आपको बताने के लिए कि मसलन ये अगर A है और ये B है, तो ये B है, ओके, ये A है, ये B है। तो ये बता रहा है कि जो रिटेंशन टाइम ऑफ B इज ग्रेटर देन रिटेंशन टाइम ऑफ A। दूसरे लफ्जों में B जो है वो बाद में आने वाली पीक है और A जो है वो पहले आने वाली पीक है। तो जब आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है तो जो बाद में आने वाली पीक है उसका रिटेंशन टाइम माइनस जो पहले वाली उसका माइनस, ठीक है। तो इस तरह से ये फार्मूला अप्लाई होगा, वेरी सिंपल। तो जब आपके पास क्रोमेटोग्राम होगा, तो अब आई वुड रिकमेंड के जो हमने लैब में एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर जो आपको पीक्स आई थी उनकी रेजोल्यूशन डिटरमिन करें, तो वो मुझे फिर नेक्स्ट टाइम आप दिखाएं। ये आप एज एन असाइनमेंट कर लें। तो ये आप मंडे को अगर हमारी क्लास होगी तो उसमें आप मुझे दिखाएं, यू कैन सेंड मी थ्रू ईमेल कि उसकी आपने रेजोल्यूशन जो है वो डिटरमिन की है। उसमें 2 या 3 जितनी पीक्स आती हैं
तो उनकी आप विद ईच अदर आर की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करें, तो ये आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, नाउ वी मूव फर्दर। तो ये अनदर फार्मूला ऑफ रेजोल्यूशन, तो ये भी फार्मूला, ये इसकी पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इस फिगर में कि ये दो आपकी पीक्स हैं, तो इनसे हाउ वी कैन डिटरमिन रेजोल्यूशन। तो अगर आप इस फार्मूले से कैलकुलेट करें, ये रिटेंशन वॉल्यूम है, रिटेंशन टाइम की बजाय यहाँ रिटेंशन वॉल्यूम यूज किया हुआ है। तो प्रीवियस स्लाइड में हमने लर्न किया कि रिटेंशन वॉल्यूम हम कैसे डिटरमिन करते हैं, फ्लो रेट को मल्टीप्लाई करके टाइम के साथ, तो रिटेंशन वॉल्यूम आ जाता है। तो उसको यूज करते हुए वी कैन डिटरमिन रेजोल्यूशन। तो अगर आप इस फार्मूले से रेजोल्यूशन निकालें या ये जो पिछला फार्मूला है इससे निकालें, तो आंसर विल बिकम कम आउट टू बी द सेम। तो ये सिर्फ दो डिफरेंट फार्मूले हैं। तो नॉर्मली ये जो पहले वाला फार्मूला है ये अप्लाई करते हैं, ये आसान है, इसमें वो वॉल्यूम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, रिटेंशन टाइम से ही आप ये वर्कआउट कर लेते हैं। तो ये बाकी ये जो W1 और W2 है वो डिफाइन की हुए हैं, ये W है। तो यहाँ पे वहां पे थी पीक एट हाफ हाइट, ये वाली यूज की हुई थी। यहाँ पे ये बेसलाइन पे जो पीक की विड्थ है वो इस्तेमाल की हुई है। तो ये फर्क है दोनों फार्मूला में, लेकिन आंसर ऑफ द टू फार्मूला विल कम आउट टू बी द सेम। ओके, अब हम आते हैं, ये स्लाइड बड़ी इंटरेस्टिंग है और वेरी इंफॉर्मेटिव, कि रेजोल्यूशन कितनी हो तो अच्छी सेपरेशन होगी। तो ये आप देख रहे हैं कि अगर रेजोल्यूशन 0.04 वैल्यू आती है, तो ये दो कंपोनेंट है, ये जो दो डॉट लगे हुए हैं ना, ये दो डॉट, तो दो कंपोनेंट थे लेकिन देखने में सिंगल पीक नजर आ रही है, इसका मतलब रेजोल्यूशन इज वेरी पुअर। तो यूं यूं आप इधर को मूव करते जाएं तो रेजोल्यूशन बेहतर होती जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि द टू कंपोनेंट्स आर सेपरेटिंग। तो यहाँ 1.25 पे आके वेरी नियर टू द बेस लाइन। तो जब आपकी रेजोल्यूशन 1.5 पे जाएगी तो ये जो है वैली दिस विल टच द बेस लाइन। तो इस तरह से ये आपकी रेजोल्यूशन जो आइडियल और जिसको ऑप्टिमम कहेंगे वो 1.5 उसकी वैल्यू है। तो जब आर की वैल्यू फार्मूले से 1.5 आ जाएगी तो इसका मतलब है कि आपका जो क्रोमेटोग्राम है इट इज परफेक्ट और सेपरेशन इज गुड। ओके, तो ये स्लाइड हमें ये बता रही है कि हाउ द आर वैल्यू जो है that affects our resolution in the chromatogram. Sir, Assalamualaikum. जी जी Sir, my class at 10 o'clock. अच्छा, Time हो गया. टाइम हो गया। Yes, sir. तो चले वी Yes, sir. स्टॉप हियर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेशन। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन सेंड मी योर क्वेश्चन थ्रू ईमेल। ओके, तो आई विल रिस्पॉन्ड टू एवरी क्वेश्चन। आप यहाँ भी पूछ सकते हैं ड्यूरिंग लेक्चर भी, एनी टाइम यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन। लेकिन अगर इफ यू हैव मिस्ड तो आप मुझे यू कैन सेंड योर क्वेश्चंस थ्रू ईमेल। ओके, थैंक यू, बाय। Thank you, sir. Thank you very much, sir. Bye Thank bye. you, sir. Bye bye. थैंक यू।